Hello students. Today we will continue our chapter Resources and Development Part 2, in which we will read Development of Resources. Development of resources, as you know, resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. Resources have been used by human beings indiscriminately, and this has led to the following major problems. Human beings use them very indiscriminately. किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, कोई अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखना चाहता है, तो इससे क्या होता है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स रेज्ड. Few of them are: number one, depletion of resources for satisfying the greed of a few individuals. कुछ के पास अगर हमारे रिसोर्सेज हैं तो वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो जाता है, क्योंकि वो पीपल जो हैं वो अपने ग्रीड के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करने के लिए वो रिसोर्सेज अपने पास रखते हैं, जिससे कि वो सभी लोगों को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते. सेकेंड वन, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, which in turn divided the society into two segments, that is rich and poor. अब कुछ लोगों के पास, जिनके पास क्या है, रिसोर्सेज हैं, वो तो क्या हो गए हैं, उनके वो तो रिच हो गए, और जिनके पास नहीं है वो पुअर हो गए. तो वो हमारी सोसाइटी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, रिच एंड पुअर. थर्ड वन, it has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution, and land degradation. These all are due to indiscriminate use of resources. Resource planning is essential for the sustainable existence of all forms of life. और हमें इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके लिए क्या करें, रिसोर्स प्लानिंग करें. किसको कितना मिलना चाहिए, कहाँ किस एरिया में कितना होना चाहिए, ये सब हमें पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी हम उसके अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं. Sustainable development. What is sustainable development? Sustainable development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of future generation. मीन्स आज हम किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, किसी रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, और वो रिसोर्स क्या है, हम उसका इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं, तो वो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, डिप्लेट होने स्टार्ट हो गए. बट अगर हम रिसोर्सेज को सेव करके रख लेते हैं कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वो यूज़ में आएंगे, तो क्या होगा, और आज के टाइम हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए हमने बचा के रखा है, तब हम उसको कहेंगे इट इज़ नॉट सस्टेनेबल. सस्टेनेबल कब होगा, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब हम आज भी हम अपने नीड्स को भी फुलफिल कर रहे हैं, और हम उस आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी हमने सेव करके रखा है, तो हम उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तभी पॉसिबल है. अगर हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं और फ्यूचर के रखा है, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल डेवलप. हमें क्या करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, वी हैव टू प्लान हाउ टू यूज द रिसोर्सेस. तो क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स प्लानिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स प्लानिंग? Resource planning is the widely accepted strategy for judicious use of resource. सबको क्या मिले, रिसोर्सेस को सब यूज कर सकें, ऐसा प्लानिंग हमें करना है. In India, there are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources,
and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. For example, the states of Jharkhand, Chhattisgarh, and Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposits. Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lacks in infrastructural development. The state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy but lacks in water resources. There are some examples. This calls for balanced resource planning at the national, state, regional, and local levels. Now, you know it, resource planning in India. It is a complex process which involves identification and inventory of resources across the regions of the country. This involves surveying, mapping, and qualitative and quantitative estimation and measurement of resources. सबसे पहले हमें क्या करना है, वो एरियाज फाइंड करने हैं पूरी कंट्री में, उन एरियाज को फाइंड करना है जहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सर्वे करके मैपिंग करके उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटिव मेजरमेंट करके हमें ये फाइंड करना है कि किस एरिया में कौन सी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है. देन हमने क्या करना है, सेकेंड, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड रोड विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स. फिर हमें अब उसके लिए उन रिसोर्सेज के लिए एक टेक्नोलॉजी बनानी है, इंस्टीट्यूशन सेटअप करने हैं जहाँ हम क्या कर सकें, प्लान कर सकें, डेवलपमेंट प्लान्स कर सकें फॉर रिसोर्सेज. एंड थर्ड वन, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ऑल ओवर नेशनल डेवलपमेंट प्लान. अब हमें क्या देखना है, पूरी कंट्री में जिन एरियाज में हमारे पास क्या है, रिसोर्स हैं, उनको हमने होल कंट्री में देखना है कि जिनके पास रिसोर्स नहीं है उनके साथ मैच करना है कि हमें किस एरिया में जहाँ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है और जहाँ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है उन रिसोर्सेज में हमें प्रॉपर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है. तो रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. India has made concerted efforts towards achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. Now, conservation of resources. Conservation of resources means how can we conserve, how can we protect our resources. जब हम प्रॉपरली उसकी प्लानिंग करेंगे, कहाँ रिसोर्स को यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना, फ्यू हैंड्स में नहीं रहना चाहिए, तो हम ये सब करके हम क्या कर सकते हैं, अननेसेसरी हम उसका यूज़ नहीं करना, हमें क्या प्रॉपर वे में उसका यूज़ करना है, उसको हमने सस्टेनेबल भी करना है. तो ये सब हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. Planned use of resources in order to meet the present needs and to store a part for the future generation also. It is the resource conservation. हम भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं और हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाया है, किसके थ्रू, एक प्लानिंग के थ्रू. दैट इज द कंजर्वेशन. मैनी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टिबल. If we conserve them, we can use them for a longer period of time. रिन्यूएबल नहीं है, हम उनको क्या कर सकते हैं, उनका रीयूज़ कर सकते हैं और रीयूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं हम रिसोर्सेज को.
Conservation of resources helps us to reduce wastage. It will help in economic progress. Resource conservation helps us to protect the environment. और क्या करती है, जब हम पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ कंजर्व करते हैं अपने रिसोर्सेज को, तो हम क्या करते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। गांधी जी ने क्या कहा था इसके लिए, रिसोर्सेज की कंजर्वेशन में? अकॉर्डिंग टू गांधी जी, देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। गांधी जी ने कहा था हमारी कंट्री में इतना रिसोर्स है कि हमारी कंट्री का हर पर्सन अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है, बट ये इतना रिसोर्स नहीं है कि वो हम किसी के ग्रीड के लिए उसका यूज़ करें। रिसोर्स उतने नहीं है हमारे पास कि कोई अपने ग्रीड के लिए उसका यूज़ करे। Greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology are the root cause for resource depletion. He was against mass production and wanted to replace it with the production of masses. Yes, students, now in the next video we will do land resources. Okay, thank you. ऊपर